Hello, my dear friends, my dear viewers, my dear students, my dear learners. Welcome to my YouTube channel Talking English. I hope you all are well. In today's video, I am going to share a story, the second part of the story, and the first part of the story I have uploaded few days ago. If you want to listen, if you want to watch that video, you can go to that video and watch that video and understand the meaning of the and have fun to watch that video and understand how the sentences, how the words I have read one by one, and you can understand how to make sentences from there and try to understand the meaning of the story, what the English story is going to say, and try to uh, learn how to speak English through that story, and try to learn how to speak English through that story. Okay. So my dear friends, in today's video I am going to share you the next part of that story in this video. So let me start. So my dear friends, I have read the story up to the Nina. Nina's mother was very upset that her daughter Nina doesn't want to buy any dress, even a new white lovely shoes that she saw last week. She doesn't want to buy that shoes also. She's very worried but said nothing. And finally mother asked Nina why why she said nothing to everything. She doesn't understand, so she asked her to tell her why no to everything. Okay, after that Nina said that mother, I don't want to go to the wedding. Nina said that I don't want to go to the wedding. In that wedding, Nina does not want to go to, because what is the reason? She said nothing. Then she said nothing. Okay, she only said that I don't want to go to the wedding, said Nina. But why? Nina said nothing. Mother, I don't want to go to the, okay, let me read. I don't want to go to the wedding. But why? Nina said nothing. Instead, two big tears rolled down her cheeks. Two big tears rolled down her cheeks. Mother, I don't want to go to the wedding. यहाँ पे जो सेंटेंस इसका मीनिंग है मदर, मम्मी, आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता हूँ, डोंट वांट टू गो, जाना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग, वेडिंग में, शादी में मैं नहीं जाना चाहता हूँ. नीना ने कहा कि मैं शादी में नहीं जाना चाहता हूँ. बट वाई, लेकिन क्यों? किसने कहा? मम्मी ने पूछी क्यों, लेकिन क्यों? बट वाई? नीना सेड नथिंग. देन इट्स रिटन दैट नीना सेड नथिंग. नीना बोला कुछ भी नहीं. इस तरह इंग्लिश बोला जाता है. इंग्लिश में हम लोग इस तरह बोलते हैं, नीना सेड नथिंग. जैसे हिंदी में हम बोलते हैं नीना कुछ भी नहीं बोला. नहीं बोला, नीना कुछ नहीं बोला. सो नीना सेड नथिंग. नीना सेड नथिंग. नीना सेड नथिंग. ओके. इंस्टेड, बदले में, इंस्टेड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चिक्स. इंस्टेड, इसके बदले, मतलब उसने कुछ बोला नहीं, बदले में क्या हो रहा था? टू बिग टीयर्स, आंसू, बड़ा आंसू, दो बूंद आंसू
दो बूंद आंसू, एक इस साइड से एक साइड से जो आंसू गिरते हैं ना, आँख से जो आंसू गिरते हैं वो दोनों साइड से बह रहा, तब बहा, बह गया, इस टाइप का मीनिंग है। रोल डाउन हर चिक्स, और उसका गालों से, इसका गाल से बहा। टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चिक्स। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना। मदर ने आर्म्स रखा, जैसे हम लोग गले में हाथ रखते हैं ना, ऐसे करके गले में हाथ रखते हैं, किसी का बाहों में किसी का गले में ऐसे करके हाथ रखते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं नीना। हर मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना। नीना के ऊपर अराउंड, उसके चारों तरफ हाथ रखा, ऐसे करके हाथ घेरा। जस्ट हम लोग हिंदी में जैसे बोलते हैं, बस इंग्लिश में हम लोग हिंदी में जो चीज़ बोलते हैं ना, इंग्लिश में उसी तरह ट्रांसलेट करेंगे तो समझने में और बोलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम लोग क्या है, डायरेक्ट उसको इंग्लिश में समझना है, हमें इंग्लिश में समझना है। ओके, इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट नहीं करना, उसको समझना है। बट यू हैव टू नो द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पास्ट। If you don't know the sentence formation, then it will take much more time. If you know sentence formation, then you can easily understand the meaning and how the sentence is formed. And if you repeat it, you have to do nothing, you have to practice it. You have to repeat the sentence again and again until it is stored in your brain. Then you will automatically say from one sentence to same types of different sentences. Okay, so here what did mother do? Mother put her hand around Nina. Don't cry, my pet, said mother. Why don't you tell me what's bothering you? Who asked? Mother asked. Whose mother? Nina's mother. So Nina का मम्मी पूछी, Why don't you tell me what's bothering you? तुमने मुझे क्यों नहीं कहा क्या तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम्हारे प्रॉब्लम क्या है, क्या तुमको दिक्कत हो रहा है, क्या चीज़ का दिक्कत है। बोदरिंग यू, व्हाट इज बोदरिंग यू? बोदर मतलब परेशान करना, दिक्कत करना, दिक्कत फील करना। ओके, व्हाई डोंट यू टेल मी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताते हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताते हो कि तुम्हें क्या चीज़ परेशान करे। व्हाई डोंट यू टेल मी, सी हाउ द सेंटेंस इज फॉर्म्ड। व्हाई डोंट यू टेल मी, दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे पूछ रहा है, मम्मी ने पूछती है तुम्हें क्या परेशान करता है, मतलब तुम मुझे क्यों नहीं बताते हो। वाई डोंट यू टेल मी, वाई डोंट यू टेल मी, वाई डोंट यू टेल मी, वाई डू नॉट यू टेल मी। ओके, सी द सेंटेंस, हाउ द सेंटेंस इज मेड, हाउ द सेंटेंस इज फॉर्म। ओके, सो ऐसे टाइप का सेंटेंस आपको बोलते जाना है, अपने आप याद करते जाना है, सेंटेंस बनाते जाना है। ऐसा ही सेंटेंस बहुत सारा और है, आपको खुद से बनाना है। ओके, एंड यू हैव टू रिपीट इट, यू हैव टू प्रैक्टिस इट, देन ऑटोमेटिकली it will be stored in your brain. The sentence formed should be stored in your brain. Then you can then it will come out of your mouth when you start talking with someone. If you think about the situation or the incidents, sentence will automatically come out of your mouth through your brain. Brain is the storage. Brain is the store. There is the storage of the sentences, words, everything, words and sentences. So when you say something, when you try to converse with others, then the sentence will automatically come out. Okay. More tears rolled down Nina's cheeks. The next sentence.
मोर टीयर्स रोल डाउन नीनास चिक्स। और टीयर्स, आंसू, आंख से आंसू है और गिरते जा रहे और गिर रहे। मोर टीयर्स रोल डाउन, गिरता मतलब गिरा और गिरा, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनाइट टेंस है ये। मोर टीयर्स रोल डाउन नीनास चिक्स, नीना का चिक्स से रोल, जो पानी है, आंसू है, वो गिरता और गिरा। ठीक है। मदर, शी सेड, मदर मम्मी, शी सेड उसने बोला, देयर इज अ स्पैरोज नेस्ट, देयर इज ए स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक सेल्फ इन माई रूम। इसका मतलब होता है हमारे रूम के अंदर जो बुक सेल्फ है उसका ऊपर एक स्पैरोज का नेस्ट है। एक स्पैरोज का, स्पैरो जो होता है एक टाइप का चिड़िया है, उसका नेस्ट है। नेस्ट मतलब रहने का जो जगह है, घर है, चिड़िया का रहने का जो जगह, नेस्ट, वो कहाँ पे है? सेल्फ का ऊपर, बुक सेल्फ, बुक सेल्फ, यू नो बुक सेल्फ, एवरीवन नोज अबाउट बुक सेल्फ, वेयर बुक सेल्फ इज मेड विथ वुड, it's a wooden furniture with a shelf 1 2 3, and on the bookshelf you have to imagine, you have to think in your mind that bookshelf is type of this type of thing. Okay, book is kept, बुक रखने का जगह है, उसका ऊपर जो जगह है टॉप में, वहाँ पे एक नेस्ट है। वो नेस्ट है कहाँ? नीना का कमरे में, इन नीनाज रूम देयर इज ए स्पैरोस नेस्ट, स्पैरो का नेस्ट, स्पैरो का जो नेस्ट है वो कहाँ पे है? बुक सेल्फ का ऊपर होता है और नीना का कमरे में है। एंड देयर आर 2 बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट। अब नेस्ट में, इन द नेस्ट, नेस्ट में क्या है? 2 बेबी स्पैरोज, 2 बेबी स्पैरोज, छोटा चिड़िया के बच्चे, छोटा चिड़िया के बच्चे होता है, जो दो बच्चे हैं, छोटे छोटे 2 बच्चा है चिड़िया के, इसके स्पैरोज के 2 बच्चे, तो इसलिए इज कॉल्ड दैट बेबी स्पैरो। ओके, देयर आर 2 बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट, नेस्ट में 2 छोटे चिड़िया के बच्चे हैं। यहाँ पे देयर आर का मीनिंग होता है वहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे है देयर जो वर्ड है, इस टाइप का सेंटेंस बनाने के तरीके हैं। देयर का मीनिंग वहाँ पे होता है, लेकिन ये वहाँ पे जो है ये यूज़ नहीं होता है, ये जस्ट सेंटेंस बनाने के लिए यूज हुआ है। ओके, क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे कि वहाँ पे नेस्ट में 2 चिड़िया के बच्चे हैं, अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। लेकिन इंग्लिश का सेंटेंस बनाने के लिए, इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग देयर यूज़ करते हैं। ये एक टाइप का सेंटेंस है। क्योंकि मैं ग्रामर में नहीं जाना चाहता हूँ, सो इफ़ यू वांट टू लर्न ग्रामर, देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस, यूट्यूबर्स, देयर आर full details about grammar. There are a lot of teachers. I will prescribe you teacher later whose video you have to watch to learn grammar. I am not going to grammar, because if you go on grammar, then it will be confined with reading and writing. Reading and writing is not the main thing. It's very big. There are difference between reading, writing and speaking. So I am going to teach you how to learn speaking English. So okay, I'm not going to reading and writing. Okay, so that's why I don't want to go to the grammar. Okay, so I'm just superficially telling you, I'm just हल्के में आपको बता रहा हूँ कि जो देयर है, देयर वाला सेंटेंस कैसे बनता है, देयर का यूज़ कहाँ होता है। ओके, सो यू जस्ट सी एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. If you know how to make sentence, there you will of course understand the meaning of there and where the there is used. Okay, so there are 2 baby sparrows in the nest. I see, mother said. तो मदर सो सरप्राइज हुआ, ओ यार सही बोल रहा है, ये तो सही है, स्पैरोज नेस्ट तो घर पे है. सो देन
उसके बाद क्या हुआ नहीं पता, देन कुछ बताएंगे। दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फेदर्स। दे आर जस्ट बिगिनिंग, वो लोग शुरू कर रहा है। दे आर जस्ट बिगिनिंग, वो लोग ठीक शुरू, मतलब लोग जस्ट जस्ट मतलब अभी अभी शुरू कर रहा है। दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फीदर्स, मतलब उन लोग, इसका मीनिंग ये होता है कि उन लोग का पंख पंख आ रहा है। फिदर, फिदर मीन्स क्या होता है, पंख होता है, पंख, फिदर, वो लोग को पंख आ रहा है। दे आर जस्ट गोइंग टू they are just beginning to get their feathers. Growing up makes them so hungry. Growing up makes them, ये वो लोग बढ़ रहा है। growing up means बढ़ना, आगे बढ़ना, मतलब बढ़ना, ओके, वृद्धि होना इसको बोलते हैं growing up, grow. So growing up makes them so hungry. जब बच्चे बढ़ते हैं ना, जब बड़ा होता है, छोटे से बड़ा होता है, तो उसका जो एक पीरियड होता है, जो टाइम होता है, तब उनको बहुत भूख लगते हैं। ये चीज़ बोल रहे हैं कि ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री। मेक्स देम मीन्स उनको बनाते हैं, मतलब बना कर देते हैं। जब ग्रो होता है ना, तो उन लोगों को बहुत भूख फील करता है, बहुत भूख लगता है। ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री, ओके। मेक्स मतलब बनाना, तैयार करना, इस टाइप का है। सो यहाँ पे मेक्स का मीनिंग होता है ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री, मतलब उनको भूख पैदा करता है। जब वो लोग बढ़ते हैं तो भूख लगता है, ओके। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चिप चिप आस्किंग फॉर फूड। ऑल डे लॉन्ग, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर, पूरे दिन, पूरे दिन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑल डे लॉन्ग। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई, वो लोग रोते हैं। दे क्राई, उन लोग मीन्स दो जन है, इसलिए दे बोल रहा है। दे यूज हुआ है, दो जन, दो बच्चे के बारे में बोल रहे हैं, दो चिड़िया के बारे में बोल रहे हैं। दे ऑल क्राई, ओके। दे क्राई ऑल डे लॉन्ग, सॉरी, ऑल डे लॉन्ग दे क्राई, पूरे दिन भर वो लोग रोते हैं। चिप चिप, चिड़िया का जो आवाज़ है उसको चिप चिप बोलते हैं, मतलब छोटे बच्चे का आवाज़ को इंग्लिश में चिप चिप बोलते हैं, ओके। सो दे ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चिप चिप आस्किंग फॉर फूड। आस्किंग फॉर मीन्स किसी चीज़ को मांगना, कुछ मांगते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ मांगते हैं। आस्क फॉर मीन्स मांगना, ओके। आस्किंग फॉर फूड, फूड मांगते हैं, ओके। उन लोग को फूड चाहिए रहता है, इसी कारण वो लोग रोते हैं, चिप चिप करके रोते हैं। इसको रोना बोलते हैं। चिप चिप करना मीन्स रोना, ओके। आस्किंग फॉर फूड। आई सी सेड मदर, मदर ने बोला। ओ आई सी, आई सी मीन्स मैं देखता हूँ नहीं। आई सी का मतलब होता है, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वो वाह, हम जैसे हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं ना, हिंदी में, ओ आई सी, ओ ऐसा है क्या, ओ ऐसा है क्या, ओ ठीक ठीक ऐसा है क्या, इस टाइप का। तो हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में आई सी सेड मदर, ओके। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज अप टू नाउ. The next part, the closing part, I will make the video, then I will next video later and upload it. Till then, you keep watching my videos and try to learn, try to catch what I am going to say, please. Okay, so please allow me to make some more videos like this. Subscribe my channel. Thank you very much. Keep watching my videos. Thank you.